যাচ্ছে এখন। Hari sinjot to yak romo yak klailen tadi meseng lai sini. Dai yak klailen sinjot to. Abo hakke bakari semua tong. Players. আপনারা লাইনে দাঁড়ান প্লেয়ার মাঠে নামতে হইব কি হলো না বল দিতে গেছে Thank you. Hambai joto no, apa haike joto sengkau kaki musuh lain ini ni pandan ceng lainnya pakai sama itu mungkin players joto kali jak, seng joto players no wish lainnya bagai, saya baru Greek lainnya bagai, angkone joto players no dak kayak aru lainnya bagai, gini ya mau. Kira, kira rumah lainnya deh. Rosa. Ada guru yang lagi dokter baru kompetisi pula kerja. Itu pasti dokter lagi tu. Jadi baru. Captain yang bos kau pakai nama? Captain, right? এখানে কাছে এখন তারা একটু হ্যান্ডশেক করে তারপরে আচ্ছা নর yang tinggi sepedi yang tinggi sebutkan pada yang tinggi sebutkan pada ada first 11 oke हाँ एंडी ओके चलो चलो Sini narung kono sini player so bagai sini malah ini baru Greek sini kayak kon yang lo kayak sih kayak yang kita agak yang saya kick off
goalkeeper ono koine yang ni goalkeeper khorokta yang ni goalkeeper khorokta Abang kau dah naik sini, adem semua korta kai je kick off kai start kena macam mana? Joto kaca man thangka kick off kai, sini ni football tournament no cengir na pakai. Jangan. आप भी आइए किक ऑफ कर दीजिएगा एक बार चलो yang Fadi, anti. Hai ke Fadi? Chalo. Fadi. Alo. Kau keringa? Kau खाने करेगा? Fadi. आजाओ फटाफट ओके प्लीज चलो कैप्टन नी तुम्ही अच्छा दिए पोजीशन तो मुंडी क्या दुनिया में आगे अच्छा सुन पेनल्टी बॉक्सের ভিতরে ডিফেন্সের কোনো কিছু না ধরবা না একাটা হ্যান্ডবল করলে ফাউল করলে রেড না শুনলে রেফ চিল্লাই আর রেফ না চিল্লে না শিবু আজকে কোডওয়ার্ড শিবু কোডওয়ার্ড রেফ না শিবু হ্যাঁ আর তোমার বক্সের মধ্যে গেলাম অ্যাটাকারের ধরবা 2 ঘন্টা মার আর অ্যাডভান্টেজ দিকে দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ফাউল কিন্তু আমি চার্জ দিয়ে দেবো আমরা দেখতে তারপর দিয়ে একটাই রিকোয়েস্ট এখানে খেলা দেখতে আসে কিন্তু খেলা দেখো আমরা কেউর জন্য না তোমার জন্য না ওর জন্য না আমরা ভুল করি আমি একবারও কিছু ইচ্ছা দিতে পেয়ে যায়
Please do cooperation with us. Okay? Good luck. Okay. Good luck. Good luck. Good luck. একদম টাইট হ্যাঁ চলো চলো ঠিক আছে না তিনজনের নাম এটা দেখো এই কবর कति बज मैच कति बज Hello, 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 hello. A very good afternoon, everyone. Welcome to the Join Kami Mini Stadium in Killa. We are live from here, and here the atmosphere is electric today, and today is highly spirited football clash between Unakoti Challengers and Gomoti Tuskers. It's the 7th match of Group A and the 14th match of the TTAADC Super League फुटबॉल टूर्नामेंट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज यहाँ
इस जॉइंग कामी मिनी स्टेडियम किला से। आशा करते हैं आप सब बेहतरीन हैं एवं एक बार फिर से आप सभी के साथ हम लाइव जुड़ गए हैं फ्रॉम किला। आज हमारे साथ हमारे बेहतरीन टीम्स हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ आज गोमती टस्कर्स एंड ऊनाकोटी चैलेंजर्स। आज ग्रुप ए का 7वां मैच है, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का 14th मैच है। आज एनकाउंटर काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे टीम्स हैं और यहाँ पहले मिनट में ही, पहले 2 मिनटों में ही शायद एक इंजरी, बट आई होप ये सीरियस नहीं है। ओके सो यहाँ हमारे प्लेयर्स रेडी हैं, हमारे दोनों टीम्स रेडी हैं ज़ोरदार टक्कर देने के लिए एक दूसरे को। दोनों ही टीम्स आज बेहतरीन खेलेंगे ये हम आशा रखते हैं। आज यूँ तो हम जानते हैं कि गोमती टस्कर्स का आज ये 2nd मैच है टूर्नामेंट का, वहीं ऊनाकोटी चैलेंजर्स का आज 4th मैच होने जा रहा है इस टूर्नामेंट का। तो ऊनाकोटी चैलेंजर्स आज एक्सपीरियंस्ड वन कहला रहे हैं, पर स्टिल वही मानना पड़ेगा 3 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उनमें थोड़ा उनका प्रदर्शन इतना बेहतरीन नहीं था। क्योंकि अगर हम फर्स्ट मैच देखें ऊनाकोटी चैलेंजर्स का तो वो बोकाफा स्टेडियम में हुआ था एंड वहाँ टाई हो गया था, कोई भी नहीं जीता था। उनके जो खिलाफ में थे साउथ लायंस, वह भी नहीं जीत पाए थे, टाई था वो मैच। अगर हम देखें ऊनाकोटी चैलेंजर्स का 2nd गेम जो खुमलुंग में हुआ था उसमें वह हार गए थे सिपाही जिला टाइगर से गोल डिफरेंस 1 से। यहाँ एक बेहतरीन पास और शायद ये गोल हो सकता है। ओके यहाँ आउटलाइन के बाहर गेंद। एवं अगर हम देखें ऊनाकोटी चैलेंजर्स का 3रा मैच वह भी टाई हुआ था अगेंस्ट वेस्ट वाइकिंग्स। तो आज देखना है क्या टाई तक ही रहेगा या फिर ऊनाकोटी चैलेंजर्स आज बाजी ले जाएंगे। और अगर आज हम देखें गोमती टस्कर्स का, उनका भी पहला मैच कुछ खास बेहतरीन नहीं था। उनका पहला मैच था खुमलुंग स्टेडियम में अगेंस्ट वेस्ट वाइकिंग्स। सो आज का वह मैच है जहां वह बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ शायद आ जाए हैं, क्योंकि पिछला मैच वह हार गए थे। तो डेफिनेटली आज उनकी तरफ से हमें बेहतरीन देखने को मिलेगा शायद, अगर वह अच्छे स्ट्रेटजीज के साथ आए हों, सच्चे अच्छे प्लान्स के साथ आए हों। तो यहाँ मैदान काफ़ी भरा भरा लग रहा है। हमारे स्टेडियम में आप देख रहे हैं दर्शकगण काफ़ी भरे भरे लग रहे हैं, सबके मुख पर एक स्माइल है, सब अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करने यहाँ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। व्हाट अबाउट यू मिथुन जी, क्या लगता है? क्यों तो मुझे किला में आके फिर से काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ दर्शकगण हमें काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। पर आज भी आप देख सकते हैं बेहतरीन दर्शकगण, बेहतरीन ऑडियंस। सो व्हाट डू यू थिंक मिथुन जी? धन्यवाद सौरमिता। दर्शक यहाँ के खेल के प्रेमी तो हैं, फुटबॉल के किला वो जगह है जहाँ से फुटबॉलर्स शायद निकलते हों, अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स निकले हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति यह है कि ऊनाकोटी चैलेंजर्स में आज बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छे खेले हुए हैं, उनको थोड़ा खिलाया नहीं गया है। तो नहीं खिलाने के पीछे भी कोई रणनीति रही होगी, क्योंकि इसमें केल्विन डार्लों को रखा गया है जो पहले भी एक मैच में गोल कर चुके हैं। तो केल्विन एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और वहाँ पर बात करें तो गोमती टस्कर्स की असाइफान जमातिया जो अच्छे खिलाड़ी है, इससे पहले भी वो गोल कर चुके हैं, तो उन पे नज़र रहेगी क्योंकि उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है अभी, दोनों की ही फिलहाल। लेकिन टस्कर्स के जो गेम है ये शायद उनका दूसरा मैच है और गोमती ऊनाकोटी चैलेंजर्स का ये चौथा मैच है। तो ले दे के ये मसला है कि दोनों टीमों के पास पाने को भी कुछ नहीं है और खोने को भी कुछ नहीं है। तो अभी इनको सिर्फ, अगर ऊनाकोटी सिर्फ पॉइंट्स के लिए खेलती है तो आज उनको मुकाम हासिल करना है, जीत हासिल करनी है। और गोमती का दूसरा मैच है तो गोमती को इसमें टक्कर के साथ अच्छे रणनीति लेने होंगे और गोल ज़्यादा करने होंगे, तो फिर आपको पॉइंट टेबल में अच्छे अंक मिलेंगे। यहाँ पर टस्कर्स को देखना है कि किस तरह का आज सामना करती है गोमती ऊनाकोटी के पीछे। तो अगर एक आध गोल अभी फर्स्ट हाफ से पहले हो जाए तो खेल को भी थोड़ा 70 मिनट का कर दिया गया है, 35-35 का होगा, 35 मिनट्स में हाफ हो जाएगा।
क्योंकि समय के देर होने के कारण ये फैसला लिया गया है। तो आप अगर इसी चीज़ को अपनी रणनीति तरीके से देखेंगे तो सौरमिता क्या कहेंगे आप? एक तो आपने एक चीज़ बहुत सही कही है कि रणनीति काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एसेंशियल थिंग है एक खेल में, और फुटबॉल जैसे खेल में तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। द वे यू आर प्लेइंग, द वे यू आर मेकिंग द स्ट्रैटेजी, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लाइक एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो बना देते हैं जब हमारा फॉर्मेशन बढ़िया होता है, जब हमारा स्ट्रैटेजी बढ़िया होता है। हाँ, अब ये भी देखने वाली बात है कि अगेंस्ट में कौन सी टीम है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ऊनाकोटी चैलेंजर्स टक्कर देने वाले टीम्स में से एक है, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी पिछले उनके 3 मैचों में 2 अगर टाई हुआ है, दैट मीन्स उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, एंड उनके डिफेंस के कारण ही वो 2 मैच जो था वो टाई हो गया था। ठीक है, वो जीत नहीं पाए, पर उन्होंने दूसरे जो टीम है उनको जीतने नहीं दिया। अगर आप देखें टस्कर्स को, हमारे गोमती टस्कर्स को, वो रेडी हैं नो डाउट, पर एक बात माननी पड़ेगी, उनका जो उनका पहला मैच वह हार गए थे, तो इस मैच में वो अपने आप में ज़्यादा जोर देंगे, अपने खिलाड़ियों में ज़्यादा जोर देंगे, अपने टीम वर्क में ज़्यादा जोर देंगे, एंड होपफुली अगर उनका स्ट्रैटेजी सही रहा तो डेफिनेटली आज उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पर यही बात है कि फर्स्ट हाफ कौन लेता है, इसमें बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ लेना मतलब आपकी अगली टीम के ऊपर आप एक प्रेशर दे रहे हैं। अब वो ऊनाकोटी चैलेंजर्स हो या फिर गोमती टस्कर्स हो, ये देखने वाला विषय है कि फर्स्ट हाफ कौन लेता है, पहला गोल कौन सा टीम करता है। अगर आप देखें ऊनाकोटी चैलेंजर्स का, जैसे कि आपने कहा मिथुन जी, कैल्विन जी यहाँ खेल रहे हैं ऑलरेडी, जैवेदियन जी खेल रहे हैं, तो उन्होंने पहले गोल लिए हुए हैं। आप जानते हैं जैवेदियन जी ऑलरेडी कैप्टन भी हैं हमारे ऊनाकोटी चैलेंजर्स के, तो उन पे नज़र रहेगी, नो डाउट उन पे नज़रें रहेंगी, पर नज़रें रहेंगी उन पर साथ ही साथ अन्य खिलाड़ियों में भी, कि जो आज न्यू जुड़े हैं इस मैदान में और इस टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे हैं इस मैदान में। सो नो डाउट देखते हैं कौन न्यूली अपने आप को दर्शाते हैं, अपने परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, पहला गोल कौन करता है। जी, जिस तरह से यहाँ पर 14 नंबर के खिलाड़ी लाल रिंत लुआंगा संभाले हुए हैं राइट विंग को, ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियों को बखूबी समझ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अकेले टैकल करते हुए बॉल को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर 10 नंबर के खिलाड़ी जो हैं टस्कर्स के, उनका प्रदर्शन देखिए, राजीव शादन जमाते बहुत ही अच्छा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे इसलिए क्योंकि उनका जो रन है सेंटर से काफ़ी अच्छा है। और 14 नंबर के जर्सी जिनका नाम लिया हूँ मैं, लाल रिंत लूँगा, उन्होंने भी अच्छा, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी कोशिश यहाँ पर, लेकिन 12 नंबर के जर्सी कह रहे हैं कि सियान था पर डारलॉन्ग, कह रहे मेरी गलती नहीं है भाई साहब, यहाँ फिसल गए थे वो। चलिए, हमारे मैदान पर शिवज्योति चक्रवर्ती जो मेन रेफरी हैं, तापस देवबर्मा लाइन रेफरी, चिरंजीत देवबर्मा लाइन रेफरी, सुशील देवबर्मा टीविल रेफरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप रेफरियों का। बहुत दिनों से ये मेहनत चल रही है आप लोगों की, काफ़ी मेहनत होता है इस चीज़ को आगे ले जा रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकर्स होते हैं आप, थोड़ी सी गलती इधर उधर हो जाए तो काफ़ी कुछ हो जाता है, तो मुश्किल होती है रेफरीज के लिए। यहाँ पर अच्छा शॉट, टस्कर्स मौका था, लेकिन देखिए नहीं चूक पाए। अगर थोड़ी सी आगे रहते ना वो, तो मामला बिगड़ सकता था। अगर बैक हिल से खेलते स्पाइक से, तो फिर वो मसला उधर जा सकता था उनके प्लेयर के पास और एक गोल हो सकता था। सौरमिता क्या कहेंगी? अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसको लेना होता है एक्चुअल में। अपॉर्चुनिटी अगर बोले तो अभी जो ये पर्टिकुलर था, वो टस्कर्स के पास एक बेहतरीन मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। यही अपॉर्चुनिटी उनको लेनी है पहले हाफ में। अगर ये अपॉर्चुनिटी वह नहीं ले रहे हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है। फिर अभी कॉर्नर के साथ यहाँ फिर से टस्कर्स ले सकते हैं बॉल, पर ऊनाकोटी चैलेंज, ओके, अभी फिर से टस्कर्स के पास बॉल, पर वही बात है, ऊनाकोटी चैलेंजर्स बॉल लेने नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से है कि आज हम वही, उनका डिफेंस बहुत अच्छा है ना मिथुन जी, मैंने आपको कहा था उनका डिफेंस पिछले मैचों में भी मैंने देखा था, पिछले 3 मैच में दे डिड सो ग्रेट। लाइक अटैकिंग अगर आप बोलें तो हाँ, थोड़ा बहुत अगर उसमें चूक हुआ भी हो, तो डिफेंस उनका बहुत बेहतरीन था, वो मानना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखना है कि डिफेंस, आप देख रहे हैं उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। बॉल जितने बार भी इस साइड जाती है, टस्कर्स के पास जाती है, उतने बार ही बॉल यहाँ से वे छीन लेते हैं। तो ये एक उनमें काबिलियत है, हम कह सकते हैं। क्या बात, आज एक बहुत
रोमांचक खेल हमें देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम्स आज चाहेंगे कि हम जीते, यहाँ तक कि उनाकोटी चैलेंजर्स ज़्यादा चाहेंगे क्योंकि 3 मैच उनके पहले ही उन्होंने टाई में 2 चले गए, एक उनका चला गया कि वो हार गए, शायद उनका दिन नहीं था। आज वह चाहेंगे कि आज उनका दिन हो। वहीं टस्कर्स डेफिनेटली चाहेंगे आज उनका दिन हो क्योंकि उनका पहला मैच वह हार गए थे, तो आज वह चाहेंगे कि वह जीते। मिल्टन जी, क्या कहेंगे आप? Yeah, and it's a wonderful day today after a long delay. There's been this match that started today here at Killa Join Kami Mini Stadium. And so it's really awesome to see both the teams playing so well today, and it's awesome to see the way they've been performing even in the previous games. So it's really nice that both the team looks really strong today. Both performing well, trying their best to score the goal, but not happening at all. So, but yeah. Since the match is only for 35 minutes for the first half, and the other half would be for another 35 minutes. Total is 70 minutes, and so it's always important that you start striking even in the beginning of the game, and so that you can make your first score really quick and make pressure on the other team. Or else, what will happen is, since you have only little time today, you need to really focus on scoring your first goal. And so this time, both the team, Gomuti Tuskers and Onukuti Challengers, need to make a difference in the way they play today. The kind of sportsmanship they should be showing and showcasing today is really important, and that's how you will be able to stand out among the audience. You see, there is a lot of audiences here, apart from any other places that we have seen in the previous games as well. And so it's really nice that we see so many football enthusiasts in this area, and this has been shown live from Join Kami Mini Stadium at Killa, and you're watching us live on TTAADC official page. And so friends, if you're looking and watching us live, it's really great. Thank you so much for being here with us, and if you're here offline, thank you so much once again for such love and support that you have shown towards the TSL 2024-2025. And so that's how it is, and that's how it should be. When you see a match like this, it's really good to have good supporters, so that you have better support, and that we be able to see such good performance from both the team. Awesome match till now, really doing great. And there's been a little bit of disturbance because of the electricity connection, electricity, and so we really could not go ahead with the live in the beginning, but we tried our best, and somehow or the other we managed to do it. And it's really good that TTADC have been doing this, have been taking this initiative to encourage the youngsters, the young ones, and they get a new platform, a better place to be in as a sportsman. And so this is how some new players would be recognized in the days to come. And so Mithun and Soromita today, the kind of game that we've been seeing again in Killa here, it's really awesome the way both the teams performing so far, so good. Really good performance from both the end. And so I'm sure that both the team are putting 100% effort, 100% in the field, in the game, and this is how you see how the the defenders are defending the ball from the Gomuti Tuskers, and also the Unukuti Challengers. Unukuti Challengers, so far they've been doing really great. They've been performing so well. That's how any team should be performing when they are on the ground. And so
looking at the ground here at Killa Mini Stadium, Join Kami Mini Stadium, it's good to see that such platform is being created for the local area as well. And more enthusiasts will definitely come up in the days to come. And I'm sure, through this kind of sports, many will be inspired and come back to be a very good sportsman even in the days to come. What do you have to say, Mithun? Uh, we have seen matches in Komalung, we have seen it in Birasi Mile, then we have seen it in Kuwai Bai Jalbari as well. There are so many crazy football lovers. If you look into the city area, not too many people would be engaged in such playgrounds. But when you come out of the city, you get to see so much of football enthusiasts. Not just cricket. People actually watch cricket. Yeah, they love it. They understand it. But here, whether you know about it or not, the craze for football is showing so much, because you know that the gallery here is almost packed, and so many audiences. You see old, young ones, even the women, the girls are coming and watching. It's nice to see that this kind of audience, and even the players on the ground would be really, really inspired by them. The kind of support they will be getting, this is their power, this is their energy, where it will come out from them within themselves. So I guess the ground here is really awesome to see because of the audiences. That's what I would say for the day. जी बिल्कुल मिल्टन जी, जिस तरह से आपने कहा कि फुटबॉल को किला, जैसे आपने कहा शहर के बाहर फुटबॉल को ज़्यादा चाहा गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि फुटबॉल ऐसा एक गेम है जहां पर 90% से ज़्यादा प्लेयर्स आप देखेंगे गांव से निकलते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, खेत खलिहान के बच्चे होते हैं। आपने बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, आप ब्राज़ील बोलिए, फ्रांस बोलिए, ऐसे बड़े बड़े देशों के नाम लीजिए, जो प्लेयर्स हैं ना वो कहाँ से आए हैं। देखिए वो प्लेयर मेहनती प्लेयर थे, क्या करते थे और आज कहाँ पर हैं। तो इसमें जिसने अपना अर्श कमा लिया ना अपना, तो वो अपने मुकाम पर पहुंच गया है। फुटबॉल ऐसा एक गेम है, एक मेहनत लगन का गेम है। और जहां दर्शक की बात करते, किला में अगर दर्शक नहीं होगा तो त्रिपुरा में कहां पर होगा, क्योंकि किला ऐसी जगह जो फुटबॉल को जन्म देते हैं, प्लेयर्स को जन्म देते हैं, पैदा होता है फुटबॉलर्स यहाँ पर। और ये जगह ऐसा है जहाँ मेहनत से भरपूर जगह है, चारों तरफ खेत खलिहान है। जिस खेत और मैदान से जहाँ से बच्चे निकलेंगे ना, वो मेहनती बच्चे होंगे, और मेहनत आज यहाँ दिख रहा है। और जिस तरह से फैन फॉलोइंग, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है ना, वो दर्शाता है कि फुटबॉल को वो कितना चाहते हैं। तो आज इस चाहने के बीच देखना है कि गोमती टस्कर्स और उनकुटी चैलेंजर्स दोनों में अब तक जो करीबन 19-20 मिनट का खेल हो चुका है, अभी तक कोई गोल नहीं है किसी के खाते में। तो देखना है यहाँ पर आज कैल्विन डार्लोंग और आचाईफांग जमातिया दोनों पर नजर रहेगी, तो दोनों आज क्या करते हैं। मिल्टन जी, यही प्रक्रिया अगर आप अपने शब्दों में इस दोनों टीम को लेके कहेंगे कि पहला गोल कौन आज कर सकता है, तो आपको क्या लगता है? See, I should be saying that the Gomoti Taskers have been doing really great so far, because they've been pushing the ball. The Unukoti Challengers are unable to cross the middle line till now. It's only few minutes they could carry the ball inside within the area of the Gomoti Taskers. But the Gomoti Taskers have been pushing the ball towards Unukoti Challengers so much that they might be scoring their first goal. That's how it's been shown here in the game. But the goalkeeper from the Unukuti Challengers is Solomon Darling. He's been showing such a lovely sportsmanship, saving the goal out there, and so active whenever the ball is around him. Let's see what happens here. This could be a dangerous situation for them, and what an unfortunate for them this time. Probably there's been a call from the referee, and the mat team has been called in. Mat team needs to run into the field as soon as possible, not waiting for them, and straight away walk in there so that the player gets recovered as soon as possible. The mat team really needs to work hard this time, because there's going to be lots and lots of injuries happening between the players, and so the mat team really need to be quick
and fast when they've been called in, so that there's no wasting of time out here. And you know, the match, when there's so much of speed, aggressiveness, and so much of tackling out there with so many people, you know, the kind of, oh, this could have been a foul, but no, there's been no call from the referee. But see how the Gomati Tuskers, you know, takes the ball in there almost, you know, into the box, but somehow or the other the Unakoti Challengers tries and, you know, gives their best to save the ball, not pushing it into the box and trying their best to not make them score. And so this is the kind of sportsmanship it's happening, and it's happening right here, right at you know, Joe Kami Mini Stadium at Killa. So it's so good to see, you know, how the players have been playing. You know, drone is flying over there. It looks so awesome. It looks like a beetle in the air. I don't know if beetle flies so high, but you know, the way it makes a sound in the field, it's really nice. That's the kind of, you know, energy even the, you know, team is doing here in the field. You know, the team that have been streaming live from Killa here in Killa, joining Kami Mini Stadium. You know, you have to appreciate them for the kind of work they've been doing and showcasing such football tournament. For the first time in Tripura, it's happening, and it's so, you know, it's so beautiful to see players, you know, showcasing such wonderful talents on the ground today. एक बात तो एकदम सही कही आपने मिल्टन जी कि काफ़ी बेहतरीन एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है गोमती टस्कर्स के द्वारा। गोमती टस्कर्स सच में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। एंड यहाँ गोमती टस्कर्स के अगर आप प्लेयर्स को देखें, जैसे प्लेयर्स लाइक अमित जी एंड अचैफन जी, उनकी तरफ से इतना बेहतरीन प्रदर्शन, तभी जाके शायद ये बॉल ऊनाकोटी चैलेंजर्स को मिल ही नहीं रहा है, उनके साइड में जा ही नहीं रहा है। अगर आप देखें, अचैफन जी ने पिछले मैच में भी काफ़ी बेहतरीन किया था एवं एक गोल लिया था, एवं शायद इस मैच में भी हम देखेंगे, क्या पता पहला गोल उन्हीं की तरफ से हो जाए। आप देखिए, ज़रा देखिए, ऊनाकोटी चैलेंजर्स बॉल लेते ही किस तरह से डिफेंस देते हुए यहाँ शायद गोल हो सकता था। किस तरह से डिफेंस लेते हुए टस्कर्स उनको बॉल दे ही नहीं रहे हैं। उनका जो पार्ट है, उनके प्रत्येक प्लेयर्स के द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। TTAADC को धन्यवाद देना चाहते हैं फुटबॉल जैसे खेल को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा कि लाइव ऐसा कुछ शो किया जा रहा है, जहां ऑफलाइन लोगों के साथ साथ ऑनलाइन भी आप सब हमें इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ शायद एक इंजरी, ऊनाकोटी चैलेंजर के एक प्लेयर। तो जैसा कि हमने कहा कि आज इस प्लेटफॉर्म में आप देख पा रहे हैं, हमें लाइव देख पा रहे हैं, बिकॉज TTAADC का ये बेहतरीन एक इनिशिएटिव है। धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भी इसको एवं फुटबॉल को इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं गैलरी लोगों से, यहाँ आप देख सकते हैं रिप्ले के दो आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ गैलरी आप देख सकते हैं, गैलरी से ही पता चल जाएगा, यहाँ लोगों की संख्या से ही पता चल जाएगा कि लोग कितना पसंद करते हैं फुटबॉल को। एक बार फिर से आप रीप्ले के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी दर्शकगण हमें देख रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ TTAADC। लेडीज एंड जेंटलमैन, गोमती टस्कर्स एवं ऊनाकोटी चैलेंजर्स दोनों ही टीम्स काफ़ी बेहतरीन हैं।
काफ़ी अच्छे हैं एवं उनके प्लेयर्स काफ़ी मजबूत हैं। स्ट्रेटजीज आज आपने देखा कि किस तरह से फॉर्मेशन, बेहतरीन फॉर्मेशन के थ्रू दोनों ही टीम्स बेहतरीन कर रहे हैं। पर अभी तक के लिए आई थिंक सो मिल्टन जी एंड मिथुन जी कि टस्कर्स शायद भारी हैं, थोड़े से भारी टस्कर्स ही हैं, क्योंकि अभी तक इस मैदान में गोमती टस्कर्स ने जितने बार भी बॉल ऊनाकोटी चैलेंजर्स की तरफ गया, उन्होंने वो बॉल शायद कुछ मिनटों के लिए भी उनके क्षेत्र में रहने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारे प्लेयर्स इतना बेहतरीन कर रहे हैं, इतना अच्छा टीम वर्क निभा रहे हैं, और अभी तक जितने भी ट्राई हुए हैं वो गोमती टस्कर्स के द्वारा ही हुए हैं। लगभग 2 से 3 गोल उन्होंने मिस किया। यहाँ शायद एक प्लेयर चेंज, 76 इन गोमती टस्कर्स, 76 प्लेयर नंबर इन एंड 28 आउट। सो अब देखना ये है कि गोमती टस्कर्स इतने देर से जो भारी पड़ रहे हैं, क्या वह सच में एक गोल ले पाएंगे? जो अपॉर्चुनिटी वह मिस कर रहे हैं, वो किसी भी एक अपॉर्चुनिटी में क्या उनका वो गोल लगेगा? क्योंकि कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, और इस पर्टिकुलर में मेहनत का फल शायद एक गोल होना चाहिए। एक और एक प्लेयर चेंज, 15 प्लेयर नंबर इन एवं 11 आउट फ्रॉम गोमती टस्कर्स। 15 प्लेयर नंबर कृष्णा किशोर जी इन एंड 11 आउट। करण। सो यहाँ एक बार फिर से गेम रिज्यूम एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन फर्स्ट गोल लेगा, क्योंकि फर्स्ट गोल से एक रहता है कि कौन फर्स्ट गोल लेगा और कौन एक प्रेशर दे देगा अपने ओपोनेंट टीम के ऊपर। सो देखना ये है कि वो बाजी कौन ले जाता है, पहला गोल कौन लेता है। क्यों मिल्टन जी? And so after a long time, we could somehow there, save the ball. The ball touched the goal post, and this is how देखिए जिस तरह से एल्टन को भी उतारा गया है मैदान पर, काफी रणनीति उनकी उच्च रही होगी, क्योंकि से टस्कर्स ने अब तक जितने भी टास्क थे उनके उसको पूरा किया है ना, वो काबिल तारीफ रफ्तार देखिए। फिर से वहां पर आगे बढ़ते हुए मौका चूक गए वहां पर, और ये मौका को काम पे लगाइए। अमित जमातिया है वहां पर आगे स्ट्राइक पर, उसको काम पे लगाए। नारायण जमातिया जो उसके गोलकीपर, उनको भी सजग रहना होगा, क्योंकि एक भी गोल उनको होने नहीं देना है, क्योंकि उनका ये दूसरा मैच है और यहां से इनको पॉइंट्स आगे लेके जाना है। और गोमती जिस तरह से मेहनत देखिए, वहां पर डिफेंस देखिए, अच्छा डिफेंस किया वहां पर टस्कर्स लेकिन नजर उसके 2-3 प्लेयर जो है आपके, करण सेवा, अमित और सुकांत, और अच्छा इफान पर तो रहेगा क्योंकि उनके नाम पे अच्छी खासे रिकॉर्ड्स है गए पिछले मैच में। तो इस तरह से देखिए लेफ्ट विंग में किस तरह से आगे बढ़ते हुए अमित जमातिया, यहाँ पर अच्छी पास यहाँ पर दिए थे सुकांतो के पास बॉल, सुकांतो दे रहे हैं, 15 नंबर के खिलाड़ी टस्कर्स, बढ़िया। इस तरह का प्रति देखिए, यहाँ पर डिफेंस तो ठीक ठाक है आपका, लेकिन यहाँ पर अगर मौका चूक गए ना तो एक गोल तो बनेगा। जी नहीं, इसे कहते हैं मौका हाथ से जाना। आप डी बॉक्स के अंदर से बॉल को लेके आ जा रहे हैं, और जबकि अच्छे आचाई फांग भी वहां पर है और एक कृष्ण भी है, तो इनको मौका मिल रहा है और उस मौका को आप लीजिए हाथ पे और एक गोल उसको परिवर्तित कीजिए। एक गोल चाहिए बस, क्योंकि अभी आपके पास वक्त जो है हाफ टाइम का वो खत्म होते जा रहा है। लमसम मान लीजिए कि 5-6 मिनट का वक्त आपके पास बचा हुआ है, तो इसी जो वक्त है इस थोड़े से अंतराल में आप उसको एक गोल, कोई भी एक, दोनों टीम ले तो दबाव बनेगा। मिल्टन जी क्या
अभी 4-5 मिनट में गोल की संभावना है, जिस तरह से गोमती को देखिए अभी अंदर घुस गई है। Absolutely. The Unagudi Challengers now making pressure towards the Gomati Taskers. It's so important at this point of time because it's already 31 minutes past, and if they are not making pressure at this point of time, it's going to be a very sad situation for the Unagudi Challengers. Later on in the later period of time, if somehow or the other, if Unagudi Taskers score the goal, it's going to be a problematic situation for Unagudi Challengers, and so they need to make their first score and save themselves from being attacked in the second half. And so it's already 32 minutes past. At this point of time, it is important they understand the strategy of the game. They make proper communication and play. I'm talking of both the teams. I'm talking of both the teams, both Unagudi Taskers and also the Unagudi Challengers and the Gomati Taskers. I'm sorry. Yeah. So that's how they should be performing at this point of time. Not delaying anywhere. As soon as you get the opportunity, just take the ball and make your first score in. And so that's how they should show their sportsman today, or else it's going to be really a bad situation, because the day today is a little bit foggy, and there might be so much of mist in the later period of time, and the ball might be skating or sleeping around, and there can be so many other injuries, because they're going to be both in pressure, and they should tackle these things even at this time, so that they make a balance in the second half. That's how it should be. And Mithun, if you have to say anything at this time, what would you say to both the teams? देखिए, जिस तरह आपने मैदान की बात कही थी कि हम लोग जो खुमलुंग में खेलते हैं वो आर्टिफिशियल वहां पर मैट बिछा हुआ है और थोड़ा स्पॉन्जी होता है। ये प्रकृति का मैदान है, यहाँ पर मिट्टी है और वहां पर ओरिजिनल घास है। जो देखिए कुछ घासें सूख भी गई है, तो मिट्टी सख्त हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर गिरेंगे तो चोटें तो आएंगी लेकिन उछलेगा नहीं। जिस तरह से वहां पर हम लोग खुमलुंग में देखते हैं आर्टिफिशियल मैदान पे ज्यादा स्लिप होता है, वो स्लिपी यहाँ पर होगा नहीं। और यहाँ पर मैदान अच्छा है, बहुत अच्छा किला का मैदान है, दर्शक बहुत अच्छे हैं और खेल को एकदम पूरे दिल से देखने आते हैं यहाँ पर। जबरदस्त सोरोमिता, ये मैदान आज जिस तरह से भरा है दर्शकों से, लगता है हाफ टाइम के बाद और जगह नहीं रहेगी। क्या कहना है? बिल्कुल सर, मुझे भी सेम चीज़ लगता है मिथुन जी। आज सच में ये मैदान बहुत भरा भरा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। जिस तरह से मैदान हरा भरा लग रहा है, वैसे ही दर्शकों को देखकर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं दर्शकगण जिन्होंने हमें ऑफलाइन ज्वाइन किया है एंड दर्शकगण जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, क्योंकि आप सब हमें सपोर्ट करते हैं तभी हर दिन हम इतने एनर्जी के साथ, इतने एंथुजियाज्म के साथ आते हैं। तो आज यहाँ हम देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल जो गेम है वो काफ़ी टक्कर की गेम है, कांटे की टक्कर दे रहे हैं दोनों ही टीम एक दूसरे को। लाइक अमेजिंग, वाओ, लाइक दोनों ही टीम काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं। अगर मैं देखूं इस साइड से गोमती टस्कर्स को, तो उनके प्रत्येक प्लेयर्स अभी काफ़ी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, अच्छा खेल रहे हैं। पर अभी फ़िलहाल जो मैंने ऊनाकोटी चैलेंजर्स को देखा, यहाँ एक फ्री किक मिला है ऊनाकोटी चैलेंजर्स, एंड देखना ये है क्या ये सही में उनके लिए लाभदायक रहेगा क्या, और ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया। अगर थोड़ा नीचे होता, वो टारगेट थोड़ा आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि सेम चीज़ टस्कर्स कर रहे थे। एक चीज़ टस्कर्स अपने टारगेट से थोड़ा चूक रहे थे, सेम चीज़ अभी कर रहे हैं शायद ऊनाकोटी चैलेंजर्स। अभी इतने देर से शायद उनकी तरफ से मैंने वो परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, पर अब पिछले कुछ मिनटों में मैंने जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है दैट वाज वाओ। तो वही अभी उनको शायद ये परफॉर्मेंस देना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ के लगभग हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, एंड फर्स्ट हाफ के अंतिम पड़ाव में अगर अभी उन्होंने अच्छा नहीं किया तो कहीं शायद वह चूक जाएंगे और गोमती टस्कर्स एक गोल कर सकते हैं। वहीं अगर गोमती टस्कर्स आप चाहते हैं आपकी तरफ से अच्छा रहे तो डेफिनेटली, और यहाँ हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ में 0 ईच, किसी ने भी गोल नहीं किया। दैट वाज समथिंग
आई कैन से मिसमराइजिंग, बिकॉज अभी तक के गेम में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लाइक बहुत कम हुआ है, रेयरली होता है ऐसा कि फर्स्ट हाफ में 0 रहता है फ्रॉम ईच टीम। तो 0-0 में है अभी दोनों टीम्स, एंड देखना भी ये है कि सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है। और शायद ये भी हो सकता है मिथुन जी, क्योंकि आज समय थोड़ा कम है, 35 मिनट्स फॉर फर्स्ट हाफ, तो ये थोड़ा समय कम होने के कारण शायद एक भी गोल नहीं हो पाया। पर वही देखना है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा। मिथुन जी। फारिगे ताखौते बुसं जों देग्लायावै बेलाय जरा केसावोबा जों सिनि जरा केसेबो जों जे मानसि जरा तै चाइथलाय दङ फारि आं नङैनो हानाय ताबुक सिनि खाइपेंब्लाय इंलिश मीडियम जेबी स्कूल नेङै सेरेरक फालिजाक बरनो जरानाय मोसामं कैसा जोंना फुरंना बागै बनि यागलन आं कयनो हानाय सिनि ताखुक समीर जमातियानो बबो कैसा रसामं रसाबै खोनानाय जोंनो मनो कोइने यांगो दाक्टिखे दांसा बुखाक फाइना बागै ताइ जों बेसि देग्लायावै जे मानसाक जरातै जों चाइथलायनाय दाक्टिख्लाय पाइनानि ताहुते बुसं नरक सुनो नाइटो लाइव TTADC हापंगनी फेसबुक पेज हो तय अब हाई केनो सिनी ऑडियंसेस रोनो सिंग बेलाइके हम बेमार होता नहीं बन नरक हाई ऑडियंसेस रोक टोमो बगिनो सिंग बेलाइके खातुं खातांग जाक तय सिनी जे टूर्नामेंट रोनो सिंग बेलाइके नाइटो तो क्लाई सिंग थंगलाई टोंगी मानो आवन बगिनो ताहुते बुसं फरिंगे सिंग तय सिनी ताबुक चेरे रोनो जरार नाई
chau ye la mo be ti mai tu ni ma nu le ai ni pa ni kha wa ni kla na no khu ti sa no le Boleh tak jawab? Belai-belai ka hambai sini serono belai ka na tu toklai sino masai phono ke klangka aun bagai norma hambai rikul bai phari ke tabun nungin hanai sini bus kau somit jema tiano belai ke khana tu tokai sino rasamung tangsa rasa bikhana nai so deglai awoi sing je masuk jorati dolai ne tai dakti klai sing koine bono rasamung rasawi pai rana bagi Jotana hambai pulayo tei jora ramani bagai pipeline hambai play nâng bay mà lấy nâng bay cốc sao lăng mà chơi lại giặc mà hai người nó tông khani nâng bay mà lấy nâng bay cốc sao ojora Bathagra din ani bagi ojora Bathagra din ani bag lang ma selai jama hai engi no tong khani nang bai malai nang bai kok chao Macam ane khapa birsawi thango himte ya prisani korowi thango ojora Bathagra din ani bagi ojora Bathagra din ani bagi lama selai jak mahai engi no tong khani neng bai malai
नों बाय कक साओ Tuma be marbang ba manjakha muktriyani kirishukha Tuma be marbang ba manjakha muktriyani kirishukha hamza tong khna ang mahai nang bo ngi tong khna lang ma sei lai jak mahai ngi no tong khani nang bai ma lai nang bai kok chao bajora bathagra din ani bagu 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 Thank you hamba तो शुरू होने जा रहा है द सेकेंड हाफ। इसके पहले फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम ने काफ़ी बेहतरीन किया था। अब देखना ये है कि कुछ बदलाव, कुछ न्यू स्ट्रेटजीज के साथ क्या दोनों टीम आते हैं ताकि अब एटलीस्ट उनके खाते में गोल दर्ज हो। मिथुन जी, देखिए रणनीति का फैसला अभी मालूम चलेगा आपको, क्योंकि 35 मिनट आपके दिए गए हैं दोनों पक्षों को, क्योंकि आज 90 मिनट का खेल हुआ नहीं क्योंकि समय यहाँ विलंब हो चुका था। तो ये रणनीति जो अभी कोच की है दोनों ही लालमिंग थांगमा जो डारलोंग को कोच है चैलेंजर्स के, ऊनाकोटी चैलेंजर्स के, और गोमती टस्कर्स के खरांग जमातिया। तो देखते हैं दोनों कोच ने क्या समझौते परामर्श के साथ दोनों टीम को अंदर भेजी है। तो ऊनाकोटी और गोमती दोनों में मती और कोटी है, तो देखते हैं आज किसकी मती और किसकी कोटी दोनों कारगर साबित होती है। तो अभी जो ध्यान रहेगा हमारा दोनों टीम के ऐसे फुटबॉलर्स जिन्होंने अब तक अच्छे प्रदर्शन से यहां पर अपने नाम और रुतबे को कमाया है। सुकांतो जमातिया, अमित जमातिया, असाई फांग और 12 नंबर के खिलाड़ी जितेन और 10 नंबर राजीव शादोन जमातिया। इस खिलाड़ियों पर नजर रहेगी गोमती टस्कर्स के। और ऊनाकोटी चैलेंजर्स में श्याम थारंग डारलोंग, और इसमें एक परिवर्तन हुआ है जहां पर आए एल्टन जिनको उतारा गया है। तो एल्टन जो है उनकी भी इससे पहले वाले मैच में अच्छी स्थिति थी और अच्छे खेले थे वो। तो लेखा जोखा जो भी होगा 35 मिनट का खेल अवशेष बचा है। मैदान पर हमारे मेन रेफरी शुभजीत चक्रवर्ती सर मैदान पर उपस्थित है। तापस देवर्मा लाइन रेफरी जो साइड लाइन पर अभी खड़े हैं। चिरंजीत देवर्मा वो भी साइड लाइन पर खड़े हैं, और सुशील देवर्मा जो हमारे टेबल रेफरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप उच्च कोटि के व्यक्तियों को मेरा और हमारे कमेंटेटर की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। अभी फैसला 35 मिनट का है। मिल्टन जी, सौरमिता जी, क्या इस 35 मिनट में सारा मामला गड़बड़ा सकता है दोनों टीम का, या किसके पक्ष का खाता पहले खुलेगा?
गड़बड़ा सकता तो है ज़रूर, पर एक चीज़ आई एम डाउटफुल, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही टीम्स ज़बरदस्त टक्कर देते हुए एक भी गोल ना हो आज इस मैदान में? क्या ऐसा हो सकता है? लाइक अगर ऐसा हुआ तो पूरे हिस्ट्री बना देगा ये मैदान, ये गेम। देखिए जिस तरह का खेल हो रहा है 0-0 तो असंभव है मेरे को लगता है, क्योंकि टस्कर्स ने जिस तरह का अभी मतलब मुजाहिरा किया है, अपने खेल का प्रदर्शन किया है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता तो नहीं है, पर संभावना कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मिथुन जी आप देखिए फ्रॉम द फर्स्ट टू अभी तक फर्स्ट हाफ तक टस्कर्स काफी बेहतरीन कर रहे हैं, पर ऊनाकोटी चैलेंजर्स एक्चुअली उनको चैलेंज दे रहे हैं कि हम तुम्हें गोल करने नहीं देंगे, हम ना कर पाए पर करने भी नहीं देंगे। देखिए कहते हैं कि लम्हा लम्हा इंतजार किया, जिस लम्हा के लिए वो लम्हा भी आ गया है, और ये लम्हा दोनों टीम के लिए इस जगह आई है कि अभी पक्ष परिवर्तन भी हो गया है, कि गोल पोस्ट भी चेंज हो गए। अभी देखते हैं किस्मत में परिवर्तन होता है कि नहीं। सौरमिता क्या कहेंगे आप? मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अब मुझे सच में देखना है कि क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी इसके पहले मैं देख रही थी कि दोनों की तरफ से एक रहा था कि हाँ चलो चलो हम ट्राई कर रहे हैं, पर अभी जो रहेगा ना, अब थोड़ा सा गेम थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, एंड होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑलरेडी हो गया और अभी अगर नहीं किया तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। अभी एक्चुअल में करो और मरो का सिचुएशन है, क्योंकि जो एक पहला गोल ले लेगा वो अगले की टीम को, अपने ओपोनेंट टीम को एक बहुत अच्छा प्रेशर दे देंगे वो। तो अब तो जरूर देखना है कि कौन पहला गोल लेता है, और ये तो सच में रोमांचक होगा अगर कोई भी ना ले पाए और आखिरी के कुछ मिनट बचे हो तो ये एक ऐसा मैदान है जो हिस्ट्री क्रिएट करता है। सच में आपने कहा था जैसे ऐसे जगह से जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं उभरते हैं, ऐसे मैदान में ऐसे हिस्ट्रीज क्रिएट होते हैं। तो अब देखना ये है सच में कुछ हिस्ट्री ये मैदान क्रिएट कर पाएगा कि नहीं, क्यों मिल्टन जी? Welcome back after the break, and it's really good to see the players doing so good so far. And probably there's going to be another goal, but no, they could not score the goal. It just went over the goal post. What an unfortunate shot it was from the part of the Unakuti Taskers. From the Gomoti Taskers. Unakuti Challengers giving heavy pressure on the Gomoti Taskers, and so it's really nice to see the way they've been performing here today at Killa Stadium. It's so wonderful to see these players playing so well, and so I'm sure they've been trying their best to make the first score in the first half, but they really couldn't do it well. And so now it is to see that how both the team perform, and who can make the first score and win the game today. Let's see what happens in the next few minutes or so. It's already about 6 seconds or so. That's about 3 minutes past now, and they're doing great so far. And so the audiences here are so beautiful. There's jam-packed over here. If you see the players, they're performing well because the supporters have been supporting them so well. Both the teams getting a heavy load of support from both the teams. I think the sideline umpires or the linesmen really need to take care of the ball that's been sent out. They need to bring the ball in as soon as possible, because there's no time that we can waste so much in the field, in the ground at this point of time. So it's important that everybody is alert and kept well aware of what's happening in the field. And so even the Met team needs to be really quick and fast at this point of time, because both the teams playing so aggressive at this time. So the Unakuti Challenge is putting heavy pressure on the Gomoti Taskers. Let's see what happens. And now the right wing striker is putting the ball, but no, he really couldn't take it that far. And the goalkeeper running for the ball. There he catches the ball, and now he will be shooting it to the players out there. Long shot, giving it to the left wing striker, but no, the Unakuti Challengers took the ball, and again in the hands of the Gomoti Taskers, but the ball is sent out. And so it is always important at this point of time that you do not miss any opportunity, because there's no time that we can waste on the ground at this time. And it should be always clear and focused that the
both the teams need to do at this point. And so, tamani sanay no takte bo song asuksa naitotok thumung tini football tournament TSL 2024-25 muthungjagi tong khila mini stadium or belai ke naitotok lai kuni team ni bakti no muthungjagi tong Gomoti Tuskers versus Unakoti Challengers kuni no belai ke tough situation tong kuni no 0 score klai tabusuk zara bor tong tong oro sanak layo je tabu puila score claim mane bono pressure create claim mane te awa hai keno borok paina ni bakha go thangai tongoi mano nei ang khakhayo tai ani audiences sungno bang obon sanamo so nor bawa hai no mada matong ang saimia phiaba ang khakhayo nor jotono tabu wan sugui tona kaisa jorate ifano tabu jodi goal score player khangkai a goal very important in ai tinio match ni bagai. And so sini logio to commentator Soromita Bhomik tai logio to ani logi Mithun Das borok kanai Hindi commentary klai ang norni baskango English tai kokborok bakai ang commentary klai to takute bosong ang Milton Deverman nongni English tai kokborok ni commentator tini ni bagai belai ka hambai TTADC ni hapang no belai ke singno jora ka hamri tama bai oba hai ke chini sikla bosong no jora ka hamro ma bai norno hambari kolpaya aba hai ke no sini referees rok je tongne no borno hambari kolpaya tamni ke belai ke naito to klai tini borok singno chubai tong tai field belai ke naito to klai borni borni je skills no borok phono goi tong awan bagi takute bosong hambari kolpaya norno. तो मिल्टन जी एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, यहाँ अब जज्बा बहुत हाई लग रहा है। आप देखिए ज़रा टस्कर्स किस तरह से टक्कर दे रहे हैं उनाकोटी चैलेंजर्स को। अभी फ़िलहाल गेम एकदम फॉर्म में लग रहा है क्योंकि दोनों ही साइड में बॉल बराबर जा रहे हैं, दोनों ही साइड को बॉल बराबर मिल रहे हैं एंड दोनों ही साइड से चांसेस है कि कभी भी कोई भी गोल दर्ज हो सकता है। शायद यहाँ एक उनाकोटी चैलेंजर की एक प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, शायद आई रियली होप कि ये सीरियस इंजरी ना हो। तो क्योंकि इतने दिनों से एक चीज़ माननी पड़ेगी कि उनाकोटी चैलेंजर्स तीन मैच के बाद आज यहाँ आए हैं। एक्सपीरियंस है ज़्यादा, पर वो एक्सपीरियंस शायद आज उनको काम में लगाना चाहिए क्योंकि लगभग अभी सेकेंड हाफ शुरू हुआ है पर कैसे समय बीत जाता है पता नहीं चलता। तो समय को भी आप काम में लगाइए, समय को काम लगाते हुए सोचिए ज़रा क्योंकि उनाकोटी चैलेंजेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें, आप रीप्ले देख सकते हैं, यहाँ आप रीप्ले देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से उनाकोटी चैलेंजर्स पूरा तरह से एक अच्छा डिफेंस दे रहे हैं हेडशॉट के साथ, जिस तरह से आपने देखा अभी रीप्ले में। तो देखना ये है कि उनाकोटी चैलेंजर्स एक्चुअल में वो जो एक्सपीरियंस है, जो 3 मैचेस के एक्सपीरियंस है, वो यहाँ लगा पाते हैं कि नहीं। वहीं अगर हम टस्कर्स को देखें तो प्लेयर नंबर 20 जैसे अमित जी हैं, प्लेयर नंबर 19 जैसे कि आचन फाइन जी हैं, तो उनके साथ अगर हम रहे वो ऐसे प्लेयर्स अगर किसी टीम में रहे तो डेफिनेटली इट्स इम्पॉसिबल कि कोई उनको अच्छे से टक्कर दे पाए। तो उनाकोटी चैलेंजर्स को थोड़ा सोच के खेलना चाहिए, साथ ही साथ टस्कर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनको शायद पता है कि उन्होंने 3 मैच खेल लिए हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर उस हिसाब से आज वह बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। और ऐसा परफॉर्मेंस अगर देखने को मिला तो आई गेस पहला गोल भी हो जाएगा उनके थ्रू। तो वही बात है, कौन सा टीम ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करके पहला गोल लेता है, ये बहुत बड़ी बात होगी आज क्योंकि सेकेंड हाफ का ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुका है एंड कुछ मिनट भी चले गए हैं एंड अभी तक वो उम्मीदें मुझे नहीं दिख पा रही हैं मिथुन जी कि कौन पहला गोल लेगा क्योंकि दोनों ही टीम इतने टक्कर के हैं। दैट मीन्स लाइक वाओ, दे बोथ the teams, they are doing so great. Just look at them, the players, the teamwork, दोनों ही टीम। देखिए आप देख रहे हैं आप किस तरह से मिडफील्ड के इस पार वह बॉल को पास कर रहे हैं, जिस तरह से टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। और वो भी एक टीम ने, दोनों टीम एक साथ ये कर रहे हैं। दोनों टीम का जो जज्बा है, जो टीम वर्क है, वो मानना पड़ेगा। मिल्टन जी क्या कहना चाहेंगे? You see, it's really nice to see the way they've been playing. Like I have already mentioned even in the beginning that both the teams
are so strong that they are not being able to score even one for each of the team. So that's why, that's how we can, judge them, saying that both the teams are really strong. They both are trying their best. Both the teams are trying their best. Gomoti Tuskers and Unakuti Challengers giving heavy pressure. But, it's important here that they make their first score. But, they have been trying their best, but unable to make their score. So fantabulous performance from both the team, I should say. And that's why both the team look so strong, and they have been performing so well thus far. And so now, already, so much of time has been spent. They do not have enough time to waste at this point of time. They need to, at least pick up one score on the scoreboard and show that we are the strongest team, or we are the team that works really hard between the team members and show real sportsmanship, so that, they prove themselves that they are the best in the ground today. But, both Gomoti Tuskers and Unakuti Challengers so amicably doing their job, and the kind of sportsmanship that's been shown here at Killa Mini Stadium, it is awesome to see them play so well. The goalkeeper Solomon, again, needless to say, he's been so active throughout the game, throughout the match today, and so he. We must appreciate such sportsmanship always. Also, there are so many good players in both the team that, we have no words to express for them. They've been doing so well. And so I think, today, you never know, they might be going with 0 for both the team. But again, who can make the first score is the most important question at this point of time. And Unakuti Challengers now giving nice pass over there. It could be a goal, but what a save by the defending team up there. The defender has done a tremendous job over there. Such a beautiful save by the by the player over there. Nicely saved, so beautifully saved out there. And so again, it is important for the Unakuti Challengers to give them a heavy challenge in the next few minutes. What say, Mithun? देखिए बहुत ही अच्छा सेव यहाँ पर नरेंद्र जमातिया द्वारा, लेकिन जब ये बातें हैं, ये गोल के पीछे पड़े हैं उनकोटी चैलेंजर्स। उनकोटी ने जिस तरह का भी प्रदर्शन किया है हाफ टाइम के बाद, हावी हो रहे हैं, और टस्कर्स को ये मौका देना नहीं है, क्योंकि गोमती टस्कर्स जिस तरह से हाफ टाइम से पहले खेल रहे थे उनके प्लेयर्स, वो जज्बा उनको खोना नहीं है, क्योंकि उनकोटी चैलेंजर्स अभी बहुत आगे, देखिए किस तरह से भी उछाल गया था, गोल पोस्ट के बराबर गया था, गोलकीपर की यहाँ पर सूझबूझ, और अब यार ये लॉन्ग किक गिरा तो शायद अपने प्लेयर्स यहाँ पर ले लेंगे 45 नंबर के जर्सी उनकोटी के। और यहाँ पर देखिए टस्कर्स जिस तरह से मेहनत का ताबूत बांधते हुए अपने साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी राजीव सोहन, बढ़िया यहाँ पर बॉल फिर से, देखिए फिर से चली गई टस्कर्स के पास। टस्कर्स को अपने पैर से गेंद को अभी पीछे नहीं हटाना है। अच्छी पासेस, छोटी छोटी पासेस, जैसे राजीव हो गए, करण हो गए, ये आपस में जो पासेस ले रहे हैं, छोटी छोटी पासेस से इनका जो मकसद है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ही कम है। आज खेल का प्रावधान भी कम कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मौके नहीं देना है। गोमती पहले बहुत सारी उनकोटी पहले बहुत सारी मैचेस खेल चुकी है, बहुत ही उनके पास नॉलेज है कि इतने टीमों के साथ वो खेल के आई है, तीनों टीमों के साथ। जहां पर सफलता मिली और मिली भी नहीं, मतलब ड्रॉ हो गए थे मैचेस थे और एक शायद हार गई थी, तो उनके पास अनुभव तो लेके आए हैं। और यहाँ पर गोमती टस्कर्स जीत नहीं मिली, लेकिन एक ही मैच खेली है, तो अनुभव उतना नहीं है, लेकिन अनुभव के परे वो आज मैच खेल रहे हैं, जैसे जितेन जमातिया, अच्छा इरफान जमातिया और करण सावा, बेहतरीन। और यहाँ पर एक इस नंबर के खिलाड़ी अनिकेत बढ़िया मैच खेल रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट विंग राइट विंग को अच्छे से संभाले हुए हैं। पहले हाफ टाइम में लगा था कि गोमती टस्कर्स खाते पे एक चली जाएगी, लेकिन डिफेंस तगड़ा होने के कारण चैलेंजर्स ने वो मौका नहीं बनने दिया। लेकिन अभी मसला उल्टा हो गया है,
अभी हाफ टाइम के बाद जो कोच ने बताया, देखिए यहाँ पर गोमती किस तरह से वहां से छीन के बॉल को लेके आगे, लेकिन अभी टस्कर्स के पास मौका है क्योंकि वो अभी भी डी बॉक्स के लाइन पे है। फिर से छीन लिए गेंद को, यहाँ पर फिर से 17 नंबर के खिलाड़ी थे टस्कर्स के। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी खेल यहाँ पर राजीव साधन द्वारा, देखिए मैच को किस तरह से परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इसी तरह से कहते हैं नहले पे दहला, पहले आपने फेंका अभी ये फेंक रहे हैं। अगर मिल्टन जी इसी तरह से खेल खेलता रहा तो मनोरंजन भरपूर, एंटरटेनमेंट आपको 100 में से 100 आज। Absolutely, and Karan Kola is doing justice to the ball today, and he's been doing really great in the field. The players from the Gomati Taskers are really strong. Let me also mention that Karan Kola is also a student of Sir Subut's student, and who's been trained under him, and so this kind of players in the team of in the team of Gomati Taskers are really important in the match, and I'm sure something or the other is going to happen in another few minutes time, and probably again here is a foul by the signal given by the referee in the field. Really experienced referee out there, Sib Jyoti, who is also an international referee for many years, and so it's important that any of the team, either the Unakoti Challengers or the Gomati Taskers, should showcase their talent and first make the score and make the goal. And so see, every now and then there's been an opportunity, but there's somewhere or the other lacking behind. The players really need to shoot the ball really hard. The goalkeeper exactly finds the ball where it is and he picks the ball, and so it's so easy for him. But if there is any shots that's been shot longer, probably this could be a goal. But well saved by Solomon again. You see, that's what is a sportsmanship. Goalkeeper out there doing justice for the team of Unakoti Challengers. That's true actually. What a save. किस तरह से बचाया गया इस गेंद को, ये सिर्फ वही जानते हैं जो उसके तैनात है कि हम गोल होने नहीं देंगे। सोलोमन जी क्या बात। अब तो मानना पड़ेगा हमारे दोनों ही गोल कीपर्स काफ़ी सजग हैं, काफ़ी फोकस्ड है, नज़रें उनकी हट नहीं रही हैं बॉल से। आप रिप्ले देख सकते हैं, रिप्ले ज़रा देखिए किस तरह से बॉल को बचाया गया कि हम गोल होने नहीं देंगे जब तक हम यहाँ तैनात हैं। तो आप ज़रा देखिए किस तरह से आज दोनों गोलकीपर्स अपनी जान लगा दे रहे हैं कि हम गोल होने नहीं देंगे। और अभी मुझे सच में लगता है मिल्टन जी एंड मिथुन जी कि शायद ये एक ऐसा गेम होगा, ये पहला शायद गेम हो जिसमें जो गोल है, जो स्कोर्स है वो 0-0 रहे। यूँ तो हम जानते हैं हमारा समय आज थोड़ा कम है, 35 मिनट्स पर हाफ के लिए, 70 मिनट्स इन टोटल, बट स्टिल समय मैटर नहीं करता है। अगर आप जीतने की उम्मीद लेकर आए हों, वो जीतने का जज्बा लेकर आए हों, पर आज दोनों ही टीम्स इतने टक्कर में हैं कि आई एम वेरी डाउटफुल कि दोनों गोल होने देंगे। दोनों टीम से एक है कि अगर हम गोल करें ना तो हम होने भी ना दे, यही लेकर आए, यही स्ट्रैटेजी आई गेस लेकर आए हैं दोनों ही टीम। तो आई एम वेरी शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम व्हाट टू से, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। वाओ, व्हाट अ गेम। सो यहाँ फिलहाल हम देख पा रहे हैं 0-0। मिथुन जी क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आज जाएगा 0-0 तक ही जाएगा, कोई ले पाएगा पहला गोल। यहाँ आप रिप्ले के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से बॉल्स पास हो रहे हैं। मिथुन जी देखिए जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है ना, मेरे को लगता है कि अभी गोमती हावी हो गई है, लेकिन ओनुकुटी को आप हल्के में नहीं ले सकते थे, लेकिन उसने दे दिया अपना जितना भी रुतबा दिखाना था, उन्होंने हाफ टाइम के बाद दिखा दिया सोरोमिता। और टस्कर्स अगर अभी नहीं संभली तो मसला इधर से उधर हो सकता है, हो तो सकता है मिथुन जी, पर आप देख रहे हैं ना उन्होंने चैलेंजेस अपना भरपूर दे रहे हैं। वो सच में चैलेंज कर रहे हैं टस्कर्स को कि आओ हम दिखा देंगे। देखिएगा अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आप ओनोकुटी चैलेंजर्स में ले लेंगे ना, केविन डार्लॉन्ग, डेविड रियांग, केल्विन डार्लॉन्ग, ये जितने भी हैं ना, ये अच्छे उम्दा खिलाड़ी हैं, क्योंकि इससे पहले तो के नाम पे बहुत सारे गोल भी हैं। तो आज मुझे अगर गोल वो नहीं कर पाए
ओनोकोटी अगर आज गोल नहीं कर पाई, क्योंकि अभी खेल शायद अभी 15 मिनट का शेष बचा है, तो आपकी कमियों को जो है ना, गोमती टस्कर से पकड़ लिया है और आपको गोल नहीं होने दे रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है यहाँ पर टस्कर्स के लिए। बिल्कुल, शायद उन्होंने पिछले तीनों गेम अच्छे से देखा है, क्योंकि ये लाइव है तो ये हमारे ऑफिशियल पेज में हमेशा रहता है, तो प्रत्येक प्लेयर ने शायद अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि उनको पता था कि ये उनका सेकंड मैच रहेगा और इसमें उसको बेहतरीन करना है। पर आप जो बोल रहे हैं ऊनाकोटी चैलेंजर्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वही मैं मानती हूँ गोमती टस्कर्स के पास भी खास प्लेयर्स हैं, जैसे कि अचैफन। तब से मैं देख पा रही हूँ अचैफन जी यहाँ से ऑलरेडी बॉल को उस साइड जाने नहीं दे रहे हैं। वही अगर हम देखें कि करण जी हैं, अमित जी हैं, they are doing really great। देखिए जिस तरह से यहाँ पर टस्कर्स ने अपना खेमा को, देखिए अभी भी देखिए किस तरह से शॉट पूरा लिया था, पैर पूरा टांग खोला था, लेकिन यहाँ पर खेले नहीं। अच्छे से पास यहाँ पर बैक किक से दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए शायद फाउल हुआ है, शायद यहाँ पर चोट लगे हैं 21 नंबर के खिलाड़ी को, माउसाउमा को, बॉल माउसाउमा डालों को चोटिल हुए थे, लेकिन हाँ ठीक हो गए। यहाँ पर अच्छी प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ही टीमों के द्वारा। आज जो जहां से भी ये मैच देख रहे हैं हमारे दर्शक, आपको पूरे मजे ये दोनों टीम दे रही है, क्योंकि अभी खेल के सिर्फ और कुछ ही पल बचे हैं, 14-15 मिनट, और ये अभी तक 55 मिनट का खेल हो चुका है, लेकिन कोई गोल नहीं। आज का खेल 70 मिनट का है और 70 मिनट मिले हैं इनको। देखिए इस तरह से गोमती से बॉल अगर छीन लिया तो फिर कुछ होने वाला है। रफ्तार देखिए टस्कर्स आगे बढ़ती हुई, सौरमिता ये खतरे की घंटी बनती हुई। अगर यहां से बॉल छीन लेते हैं ना, अच्छे खिलाड़ी हैं ये 76 नंबर के जर्सी हैं टस्कर्स के। देखिए टस्कर्स के हल्के हाथों से, और ये आगे निकलते हुए रफ्तार, ओ भाई ढीला पजामा हो गया पाजी। देख रहे हैं पाजी, यहाँ ढीला पजामा होना ही था। यहाँ कैसे कैसे आप देख रहे हैं, डिफेंस देख रहे हैं आप, किस तरह से गोल करेंगे हमारे प्लेयर्स, किस तरह से सामने जाएंगे। सब एक एक रणनीति पता है हमारे दूसरे टीम के, हमारे टस्कर्स। आप देख रहे हैं किस तरह से बॉल्स को पास किया जा रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट अ गेम मिल्टन जी। That's what I'm surprised to see both the team doing so well in the game today. I don't know why, but there's some something in our in this situation that probably both the team are going zero by the end of the day. So let's see what happens. But this is not really happening. At least there should have been at least one goal in the scoreboard, but that's not happening. Both the team giving so much of tackle to each other, so they understand the team, both the team understands who is playing what in what position and how they need to be tackling the players out there. And so I'm really surprised that there is going to be 0-0 for both the team, both Ūnākoti Taskers and both Gomoti Taskers and Ūnākoti Challengers. This should not happen actually in the game, but fortunately or unfortunately today, the team have been chosen so well. Both the teams are so strong that we can see the replay there, how the ball has been saved. Luckily, the defending team saved the ball so well, and you see how the goalkeeper saved the ball, jumped into the ball and picked it up again. There goes the ball into the D box. There, let's see what happens. There is no player from the Gomoti Taskers. Again, the Ūnākoti Challengers took the ball and safely sent it to the midfield. But there is a defender from the Ūnākoti Taskers now, and the left wing striker also picked up the ball from the part of the Gomoti Taskers. And again, the Ūnākoti Challengers picked the ball from the hands of the I don't know what's going to happen today, but this is really sad. This is really sad on the part of the both the team. They are not being able to make at least one score. Conor Koloy again picked the ball and sent it there to the striker, midfield striker. There goes Raj Chandra Jamatia. But again, but I guess the Gomoti Taskers is falling heavy on the Ūnākoti Challengers now. That's what can be seen on the field, on the ground at this point of time. You see how the ball has been passed quietly, safely. There! Oh my God! This could have been a goal, but no! Again, what an unfortunate opportunity for them. Let's see what happens. But again, you see
the Onukudi challengers probably are tired now. They have lost their stamina and not being able to pick the ball. That's And true, so- actually. And so, yeah, luckily, how the, the Onukudi challengers putting so much of pressure on the Gomati Taskers is very much appreciable. बिल्कुल बिल्कुल मिल्टन जी, सच में जो प्रेशर दे रहे हैं यहाँ, एक्चुअल में मैं जो फील कर पा रही हूँ, ये प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर ही पड़ रहा है। अभी फिलहाल दोनों टीम्स के दिमाग में ये है कि कौन पहला गोल लेगा, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं लगभग सिर्फ, यहाँ आप रिप्ले देख सकते हैं, ज़रा देखिए किस तरह से सोलोमन जी जिस तरह से बॉल को सेव कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल, अमेजिंग। अमित जी, मैंने तब से कहा था, अमित जी ही इज डूइंग ग्रेट। प्लेयर नंबर 20 अमित, ओ माय गॉड, व्हाट अ गेम, जहां अभी तक मैं देखा कि दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब सच में सिर्फ लगभग 10 मिनट बचे हैं, और इस 10 मिनट में अब हमारा पहले कभी पिछले जो गेम से हमारे उसमें रहता था कि या टाई हो सकता है, या बढ़ोतरी ज़्यादा ले सकते हैं, या गोल डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, पर इन दिस गेम अब मुझे लगता है कि कौन पहला गोल लेगा, इसी में ही थोड़ा डाउट है कि क्या पहला गोल इस मैदान में होगा आज, या ये मैदान आज एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी। मिथुन जी, क्या लगता है आपको? देखिए, लगता है ओनुकुटी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है आज टस्कर्स ने, और ये चैलेंज बहुत दूर तक जा रही है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है, और बल्ले बल्ले थी आओ किसी के पल्ले ना जाओ, बस अपना खेल खेलिए, आगे जाइए। और टस्कर्स ने जिस तरह की रणनीति ली है, लेफ्ट विंग और राइट विंग, अनिकेत एंड अमित, ये बेहतरीन आगे बढ़ते हुए 75 नंबर, देखते हैं किसके पाले पे अच्छी पास, छोटी छोटी पासेस आगे बढ़ते हुए, देखिए किस तरह से, आओ भाई चूक गया। यहाँ पर आपने फिर से ओनुकुटी के हाथ में अपना त्रिशूल थमा दिया है, लीजिए अपना अस्त्र और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि रणनीति और रन में सब कुछ जायज होता है। आप आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य जो आपने बाहर से लेके आए थे उसे हासिल कीजिए। खाते में जब पाने के लिए कुछ नहीं तो खोने के लिए कुछ नहीं, तो आप आगे बढ़िए, और उस फैसले की घड़ी अब कुछ ही चंद मिनट। और यार बढ़िया, ओ पाजी, ना बल्ले हुई ना हुई, एवे हो गई, साइड निकल गई भाई, और रोते रोते रह गए सब। अगर आपको आज यहां पर आंसू बहाने हैं ओनुकुटी के, तो टस्कर्स को यह टास्क पूरा करना है, और जिस तरह से आगे आप निकल के खेल रहे हैं उस खेल को जारी रखिए। तो आप हावी रहिए, क्योंकि आपका प्रदर्शन ही आपको आज आपका परिचय देगा। खेल ऐसा खेलिए जिंदगी में जो कोई भूले ना, वो सपना बन जाए सबके लिए। मिल्टन जी, यहां पर ये जो वस्त्र है काला रंग, आज सब पे छा जाए। That's what I was saying. The Gomati Taskers falling heavy on the Onukudi challengers today. Really, really nice to see the way they've been performing in the match today. And so I guess, instead of making short passes, instead of making short passes now, don't waste your time. Make sure that you have a really long shot, so that there's no time for the players to come beside you and tackle the ball. So make sure you put a long shot, and this could be a game-changing shot for you. That's what I would say. And so Amit was somehow missed the opportunity. If the ball would have gone just beside his leg, somehow he could have made a goal, but luckily again saved. And so but here, like I have been mentioning even from the beginning, Solomon is doing an awesome job, because देखिए जिस तरह से अभी यहाँ पर मैच गया था, आप उस सोलोमन को अगर क्रॉस ओवर नहीं कर सकते तो आप डिफेंस को क्या संभालेंगे? इतना मेहनत करके आप आगे डी बॉक्स पे जा रहे हैं, गोल नहीं हो रहा है, दुख की बात है। That's what I was saying. It's an unfortunate day. It's an unfortunate day for both the team, because Onukudi challengers have been trying their best to put the ball towards the Gomati Taskers, but no, it's not happening. Now there's been a player change, and player number 18 is gone in on the part of the Onukudi challengers, and 45 is taken out of the game just to make some changes in the gameplay. देखिए मोसेस हालम को अंदर भेजा गया है, 18 नंबर का मोसेस हालम। कुछ रणनीति होगी, क्योंकि ओनुकुटी अभी जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है हाफ टाइम के बाद, मिल्टन जी और सोरोमिता जी, मुझे लगता है रणनीति बाहर से बन गई है कि अंदर ऐसे प्लेयर को भेजा जाए जो एक
प्रदर्शन करे, एक गोल अपने खाते में लाए, लेकिन जिस तरह का टस्कर्स मिल्टन जी मुश्किल है. Correct. And so that's why, you know, new players have been sent in because they understood that there are already, you know, they are already lacking in the energy, and the kind of energy that is required at this time is important. They need fresh energy, they need fresh stamina so that the person can actually tackle the ball very quick and put the first score on the board. But that's not happening, and so they you know, quickly made a you know, change in the player. That's what is happening here. I guess even the Gomati Tuskers also need to do something over there, and maybe they need to make some changes in the field. पाजी, एक बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, जो आपने एकदम फर्स्ट में कहा था, याद है शायद आपको मिथुन जी, कि ऐसी जगह से प्लेयर्स उभर कर निकलते हैं और हिस्ट्री बनती है ऐसे जगह से. आई एम वेरी श्योर आज यहाँ से हिस्ट्री बनेगी. मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि आज शायद यहाँ ऐसा हिस्ट्री बन सकता है जो शायद इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं बना है. 0 ईच. देखिए, ज्योग्राफी भी बदलेगी. हिस्ट्री अगर कायम है तो ज्योग्राफी भी बदलेगी. लेकिन सौरमिता जी, आज यहाँ पर जो रणनीति होगी ना, वो रणनीति देखने का, कोच का जो रणनीति है वो देखने का खेल है आज. प्लेयर्स को मत देखिए, आज रणनीति देखिए कोच का. आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, सच में किला बहुत ज़बरदस्त एक मैदान है. आपने जब पिछली बार जब किला में हम आए थे तब गोमती ग्लेडिएटर्स वर्सेस वेस्ट रॉयल्स था, जहां गोमती ग्लेडिएटर्स ने 3 गोल खाते में दिए थे एवं वेस्ट रॉयल्स ने एक भी नहीं लिया था. 3-0 से वह जीते थे गोमती ग्लेडिएटर्स. वहीं अगर आज हम देखें, आज का ये जो मैच है वो अभी तक 0-0 पर अटका है. एक भी गोल किसी भी टीम ने नहीं लिया है, जो बताता है, दर्शाता है यहां शायद एक गोल हो सकता. और ये फिर से एक जबरदस्त डिफेंस, एक जबरदस्त डिफेंस. यहां ऊनाकोटी चैलेंजर्स ने बता दिया है कि हम गोल नहीं कर सकते तो हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. मिल्टन जी, आज क्या लगता है? अभी भी आई एम डाउटफुल, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट बचे हैं. आखिरी कुछ मिनट में And so the mat team has been called into the ground at this point of time because there's been an injury on the part of the Unagudi Challengers. I don't know. There's a feeling that both the team are going 0 today because they are not being able to, score the goal. And Gomati Tuskers, what a player they have. They have been pushing so hard into the ground. They're not being able to, make any score so far. And so this is not a good sign. This is not a good sign for both the team. If at least one team makes the score, then it becomes really, really good. And there is only another, only another 3 or 4 minutes or so, or in case the ref actually asked for a little bit of extension of the time, probably there can be at least 5 minutes more. But only 3 minutes time. I don't know if there's going to be a change in player, and if there's going to be a change in player, then how are they going to manage this time? It's really tough situation. So they really need to work hard. And there's going to be a player change over there on the part of the Unagudi Challengers. Player number 13 in, and player number 21 is sent out so that they have a fresh energy over there. जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि गुड साइन बैड साइन का पता नहीं, पर आज आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैंने एकदम सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मैदान शायद हिस्ट्री बना सकता है. एंड अभी के लास्ट मिनट्स में आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि शायद आज का ये जो गेम है वो 0-0 पर ही टिक जाएगा. पर आप देखिए ज़रा, आज दर्शकगण को देखिए. दर्शकगण अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं और सभी की नज़र सिर्फ बॉल पर है कि कहीं शायद गलती से एक गोल मिल जाए. सभी हमारे दर्शकगण को आप देखिए, पूरा गैलरी भरा हुआ है एंड दे ऑल आर लुकिंग स्ट्रेस्ड आउट. क्या होने वाला है, अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, जैसे हमारी नजरें टिकी हैं बॉल पर. And this is another opportunity. I don't know if this is going to be the last opportunity for the Gomati Tuskers, but this corner shot may make a difference in this gameplay today. And so it's shot so well over there, saved by the defender, and again headed out, and again they missed the opportunity. And there's going to be a player change over here. Player change from the part of the Gomati Tuskers. And so player number 63 is going to be sent in, and player number 18 is taken out from the gameplay at this time.
and Ananta Hari Jamatia is sent in so that he make a different strategy. Probably the coach Sumit Jamatia has something in mind, and he sent a new player in the game. And so needless to thank the team manager Kanang Jamatia and Sumit Jamatia from the Gomati Taskers. And also would like to thank the team manager Lalming Tanga Darlong, that's the captain, and also the captain Javedia Darlong. Zavidia, and also the team manager Donald Darlong. We'd like to thank all of them for bringing such player in the game like this. And so I guess there's not going to be any score today. And we are coming to the end of the game. 1 minute extension of time, and the Met team has been called in, and so I guess the Met team needs to run in as fast as possible and clear the field. आज हिस्ट्री क्रिएट होकर रहेगा। 1 मिनट में यूं तो हम जानते हैं फुटबॉल में आखिरी मिनट तक कुछ भी हो सकता है, पर अब बचा ही सिर्फ आखिरी मिनट है। मिथुन जी, मुझे लगता नहीं है कुछ चेंज होगा, पर मानना पड़ेगा आज बोथ द टीम्स, दोनों टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया। आप देखिए जरा, एक टीम ने गोल किया भी नहीं है, करने तक नहीं दिया। देखिए पूरे टीम का खेल वहां पर सोलोमन डार्लोंग ने खेला है, वो जो गोलकीपर है। और अगर टीम की बात करें, पूरे टीम का अगर आप मुझे बोलेंगे कि एवरेज, अगर आप परसेंटेज के वाइज, तो मुझे गोमती टस्कर्स, मैं उनको 65% तो दूंगा उनको अटैकिंग के लिए, सिर्फ क्योंकि उनको अटैकिंग बहुत मिले लेकिन चांसेस नहीं मिले, गोल नहीं हुआ। वहां पर सोलोमन था लेकिन चांसेस पूरे लिए थे वो डी बॉक्स के अंदर घुस के, लेकिन वहां पर गोल नहीं होने के भी कई कारण हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। शायद वो शॉट था पावरफुल नहीं था, टैक्टिक नहीं था, वो टैकल नहीं कर पाए थे, अपना टेक्निक का यूज नहीं किया, गोल पोस्ट को पढ़ नहीं पाए पूरी तरह से, क्योंकि उसका जो आपका रेक्टेंगल पोजीशन होता है उसको अंदर में भेदना भी एक काम होता है, क्योंकि उस बॉल को आप जब भेदेंगे तो गोल कीपर को ध्यान में रख के भेजना होता है, क्योंकि इतना बड़ा गोल पोस्ट है, तो आपका नजर वहां हट जाता है तो गोल हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर गोल सोलोमन ऑलरेडी आप पर नजर गड़ाए हुआ है कि बॉल को कौन लेकर रखा है। लेकिन मजा है, मौका आया, खेल खत्म, और ये 70 मिनट बस यही गुजर गए सोरोमिता और मिल्टन जी, क्योंकि खेल का प्रदर्शन ही कुछ उच्च कोटि लेवल का था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जहां से हमारे लिए जुड़े थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट ऐसा हुआ है कि 0-0 पर ही खेल खत्म हुआ। एंड आई मस्ट से गोमती टस्कर्स, ऊनाकोटी चैलेंजर्स, आप दोनों टीम ने ही बहुत 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 जबरदस्त किया है। Thank you so much for being live with us at Killa Stadium today. And so we'd like to thank all our audiences, all our fellow lovers of football tournament. TSL 2024-25 has given you such a wonderful match today between the Gomati Taskers and the Unakooti Challengers. Both the team playing so well today and have done a tremendous job. And so we'd like to thank all our audiences for being so wonderful and supporting us so well thus far. And so we'd like to see you in the days to come again. Let's hope that there is more audiences that is coming in. So ladies and gentlemen, फिर से मिलेंगे अगले दिन अगले मैच में नई जगह में एक बेहतरीन टीम्स के साथ, 2 बेहतरीन टीम्स के साथ, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस के साथ। तब तक के लिए शब खैर, नमस्ते, एक बार फिर से धन्यवाद हमें वॉच करने के लिए। डू फॉलो आवर ऑफिशियल पेज TTAADC।